So students, we have studied till now two atomic models. First is J.J. Thomson's atomic model and second is Rutherford's atomic model. If you asked about J.J. Thomson's atomic model, remember atom is a spherical in shape which has a radius of 10 raised to minus 10, which has a radius of 10 raised to minus 10. ठीक है? And positive charge protons are uniformly distributed and electrons are embedded in it in such a way that atom possess more stable electrostatic condition. वैसे ही रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसको एक्सप्लेन करना हो 2 मार्क्स में, तो पहले लिखना है the positive charge and most of the mass of atom was densely concentrated or concentrated in extremely small region, and this very small portion of atom was called nucleus. Second one, the nucleus is surrounded by electron that move around the nucleus with a very high speed in a circular path, which is called orbits, जिसे orbit कहा जाता है. So the Rutherford's model of atom resembles the solar system. Okay, and finally, protons and electron means nucleus and electron has electrostatic attraction force. Now, let us see our next question. Our next question is, explain atomic number and atomic mass. स्टूडेंट्स, ये आपको मैं पहले 2 लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इससे भी डिटेल में, फिर भी एक बार टॉपिक है तो देख लेते हैं. तो पढ़ना है हमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. वैसे आप जानते होंगे कोई भी न्यूट्रल एटम हो, उसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन एटम, and charge of both are same and opposite. चार्ज सेम भी है और ऑपोजिट भी है और नंबर भी सेम है, तो ओवरऑल एटम कैसा होगा? न्यूट्रल. जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम की बात करूं तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन की बात करूं 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन. कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर, उसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर Z. ओके, फिर से ये एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना, वही समझाता है, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखनी है अच्छी सी तो इंप्रेसिव डेफिनेशन है the total number of proton in the nucleus or number of electron in neutral atom is known as atomic number of that element. As you know that electrons are surrounding position and protons are present in the nucleus. तो हम लिख सकते हैं atomic number Z is equal to number of proton present in the nucleus of an atom or number of electron present in a neutral atom. Understood? तो ये हुआ एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल है Z. इतना ही नहीं, न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है. While the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the nucleus due to protons and neutron. कोई भी एटम के पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ प्रोटॉन है, लेकिन अगर मास ऑफ एटम की बात करें तो प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रिस्पॉन्सिबल है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए न्यूट्रॉन को ज्यादा महत्व दिया जाता है. इसलिए कहेंगे the protons and neutron which are present in the nucleus, they are collectively called nucleons. भैया आप कहाँ रहते हो? इंडिया में, you are Indian. कहाँ रहते हो? पाकिस्तान, पाकिस्तानी. कहाँ रहते हो? इटाली, इटालियन.
कहाँ रहते हो? अमेरिका, अमेरिकन। कहाँ रहते हैं पार्टिकल? न्यूक्लियस, तो इसलिए नाम बनाया न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम बनाया? न्यूक्लियॉन्स। सो लिखा है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इज टर्म एज मास नंबर ए, atomic number Z, and mass number A. So we can say that the total number of nucleons is termed as mass number A. तो बच्चों मास नंबर A का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब N. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N कहते हैं। तो फॉर्मूला बना A इज इक्वल टू Z प्लस स्मॉल n। तो ये हुआ बच्चों एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो फिर से डेफिनेशन देख लें। The number of proton present in the nucleus of an atom and the number of electron present in neutral atom is known as atomic number Z. What is atomic mass? So the total number of nucleons is termed as atomic mass. ठीक है? तो ये हुआ A and Z और फॉर्मूला याद रखिए एटॉमिक मास A इज इक्वल टू Z प्लस स्मॉल n। कभी कभार वहां पे कैपिटल N भी लिखा जाता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेन आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। बच्चों पहले देखेंगे हम आइसोबार। ओके, बार का मतलब होता है वेट, मतलब जिसका वेट सेम हो उसे कहेंगे आइसोबार। तो आइसोबार में लिखना है आइसोबार्स आर द एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, अच्छी तरह से लिखना हो तो लिखिए द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर दे आर नोन एज आइसोबार। उन्हें आइसोबार की तरह लिखा जाता है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ आइसोबार। बच्चों एग्जाम्पल्स को समझने के लिए पहले हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एटम और एलिमेंट? तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल है AZX। थोड़ा जूम करके हम देखते हैं हाउ कैन वी राइट इट। ZXA ऐसा बोला जाता है, जिसमें X इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट, Z is atomic number, okay, and A is atomic mass, which are written as a subscript and superscript. नीचे वाले को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ऐसे कोई भी आयन या फिर एटम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which having same atomic mass but different atomic number, so they are known as isobars of each other. जैसे एग्जांपल दें तो आपको पता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिनका मास सेम हो, जैसे कोई स्टूडेंट है 6 स्टैंडर्ड में और दूसरा है 8 स्टैंडर्ड में, दोनों की कक्षा डिफरेंट है, लेकिन अगर दोनों का वेट सेम होगा तो उनको क्या कहेंगे? आइसोबार्स। उसके एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 6C14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। 6C14 7 नाइट्रोजन 14। ओके, अंडरस्टूड? तो सिर्फ इतना ही याद रखो आइसोबार में। नाउ व्हाट इज आइसोटॉप्स? बच्चों टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन, आइसो का मतलब सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम कब होगी? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखना है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which having identical atomic number but different atomic mass, so it is known as isotope.
The atoms of same element which has identical atomic number but different atomic mass, it is known as isotopes. We say the atoms of same element which having identical atomic number but different atomic mass, so it is known as isotopes. उसे isotopes कहा जाता है. In other words, it is evident that difference between the isotope is due to presence of different number of neutron. आप 10 तक ऐसा पढ़ें कि भी प्रोटॉन सेम हो, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो उन्हें एटॉमिक आइसोटॉप्स कहते हैं. मतलब ये हुआ ना कि अगर प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है ना, तो एटॉमिक नंबर Z सेम क्योंकि प्रोटॉन सेम. न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से ओवरऑल एटॉमिक मास कैसा होगा, डिफरेंट, तो उनको आइसोटॉप कहा जाता है. लेट अस सी एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप. तो बच्चों आइसोटॉप के एक्चुअली एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन उसके 3 आइसोटॉप्स है. फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम. अंडरस्टूड? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम सिंबल के साथ याद रखिए. प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2 एंड ट्रिटियम 1T3. ओके. आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ट्रिटियम में T रखा, ड्यूटेरियम में D रखा, तो प्रोटियम में P क्यों नहीं रखा? रीजन है क्योंकि बच्चों अगर मैं P रख दूं तो फास्फोरस बुरा मान जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? एटॉमिक नंबर 15 का भी सिंबल P है, इसलिए हम प्रोटियम नहीं लिख सकते. तो 3 टाइप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. 1H1, 1D2, 1T3. The proportion of protium is 99.985%. Deuterium is 0.015%. और लिखा है ट्रिटियम isotope is found in trace amount on the earth. It is found in trace amount on the earth. ट्रेस का मतलब है बहुत कम. अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो उसका रेशियो है बच्चों 10⁻17:1. 10⁻17:1 मतलब 10⁻17 जितने एलिमेंट हो, एटम्स हो, उसमें से सिंगल एटम होता है ट्रिटियम का. तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स आएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. सिंबल 1H1, 1D2, 1D3. Proportion of protium is 99.985, 0.015 and 10⁻17:1 is proportion. ये एग्जाम्पल हुए. चलो अब दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन का. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एटॉमिक मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है. तो दिस इज आइसोटॉप ऑफ कार्बन. आपको पूछा जाए विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज रेडियो एक्टिव, तो उसमें याद रखो 6C14. ओके. चलो वैसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एटम में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हैं. 2 आइसोटोप है, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37. तो इन सभी में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे हैं, डिफरेंट. जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो प्रोटॉन तीनों में 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास माइनस एटॉमिक नंबर. तो 1 - 1 0, तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन. ड्यूटेरियम में 2 - 1 1, ट्रिटियम में 3 - 1 2, तो 0 1 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. कार्बन में क्या होगा, 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8, ऐसा आएगा. और क्लोरीन की बात करें तो उसमें होता है बच्चों 35 में से 17 जाएगा तो 18 आएंगे, और 37 में से 17 जाएगा तो 20 आएंगे. तो these are different number of neutron present in isotope of different element.
चलो आइसोटॉप्स, उसका डेफिनेशन लिखना है, तीनों एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने हैं, इसके साथ साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें समझाना है। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप? तो कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए आप इतना याद रखो, पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है कोई भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। ओके, जैसे बात करूं तो आपको पता है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, ठीक है, तो वैलेंसी 1 है, इसलिए तो वो Na+ बनाता है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, वैलेंसी 2 है, इसलिए तो दोनों को लूज करेगा, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा। तो मैग्नीशियम इसलिए ऑलवेज +2 होता है। सो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ओके, अब आप ही बताओ, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, तो Z कैसा होगा? सेम, और Z सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सेम। फिर से, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी? सेम। तो याद रखो, कोई भी आइसोटॉप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। बराबर, केमिकल रिएक्टिविटी कैसी हो सकती है? डिफरेंट। प्रॉपर्टी सेम पर रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी। जैसे कोई रेस में 5 लोग दौड़ रहे हैं, तो सबकी प्रॉपर्टी सेम है कि दौड़ना है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन रिएक्टिविटी उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड है। समझ गए? तो लिखा है, लास्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग टू आइसोटोप इज the chemical properties of atoms are controlled by the number of electron, okay, which are determined by the number of proton present in the nucleus. chemical property electron पर depend है, electron number proton पे depend है। number of neutron present in the nucleus are very little effect on the chemical property of an element. negligible effect neutrons की होती है। Therefore, all the isotope of a given element show same chemical behavior. chemical behavior कैसे होंगे? Same. जैसे एग्जांपल दूं तो कार्बन 12 आइसोटोप है यहाँ पे, उसका कंबशन करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ओके, और कार्बन 14 लूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट ये है कि कार्बन 12 का नॉन रेडियो एक्टिव होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हुई? सेम। तो मस्ट रिमेंबर, द आइसोटोप शुड हैव सेम केमिकल बिहेवियर। ओके गाइस, सो दिस इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ओके, चलो छोटे छोटे प्रॉब्लम देख लेते हैं। लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 Br80। तो बच्चों एटॉमिक नंबर 35 है, तो इतना डिटेल में मत लिखो। एटॉमिक नंबर 35 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 35। ओके, सेकंड थिंग, न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 35। ओके, so number of proton is equal to number of electron, both are 35। number of neutron find करना हो तो याद रखो a minus z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करो, so 80 में से 35 सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा? 45। अंडरस्टूड? सो वेरी सिंपल, न्यूट्रल एटम है
तो 35 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बोथ आर 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, a माइनस जेड करो तो 80 में से 35 जाएगा तो क्या आएगा 45। अंडरस्टूड। सो दिस इज प्रॉब्लम 2.1। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखा है, number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16. Assign the proper symbol of the species. तो बच्चों सबसे पहले अगर नंबर पर से सिंबल में जाना है तो प्रोटॉन को कलेक्ट कीजिए। कितने प्रोटॉन है 16। ओके, तो ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। ओके, सो राइट डाउन एज 16। फिर आपको न्यूट्रॉन देखने, न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों 16। ओके, तो न्यूट्रॉन भी 16, प्रोटॉन भी 16, तो 16 टू 32, तो फिर एटॉमिक मास लिख दो 32। फिर ध्यान से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब होने चाहिए 16 न्यूट्रल एटम में, लेकिन 2 ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या नेगेटिव, तो न्यूट्रल में 2 नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो क्या बनेगा -2। आपको मैंने आगे वाले लेक्चर्स में भी पढ़ाया है कि इफ एनी स्पीसीज लूजेस इलेक्ट्रॉन तो उसका चार्ज प्लस होगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज माइनस होगा, रिमूव हुआ तो प्लस, गेन किया तो माइनस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2, 16 होने चाहिए ना, 18 है, 2 गेन किए, इसलिए चार्ज क्या लिखोगे -2। तो ये सब एमसीक्यू में या वीएसक्यू में आता है, उसमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट प्रोटॉन नंबर, इट इज 16, सिंबल ऑफ सल्फर 16। न्यूट्रॉन जोड़ दो 32 ऊपर लिख दो, इलेक्ट्रॉन चेक करो उतने ही है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ज्यादा है तो नेगेटिव और कम है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दिस इज सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल छोटी छोटी दाखली ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो ओके गाइस, इतना अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इन नेक्स्ट लेक्चर we will take drawbacks of Rutherford's atomic model. Okay, thank you.